નમસ્કાર. જીવન ક્રિયાના છેલ્લા સેશનમાં ઘણા બધા લોકોને એવી સૂચન છે કે એમાં થોડી સમજણ ઓછી પડી છે, એટલે હું ગુજરાતીમાં લેવાનો એને પ્રયત્ન કરું છું. એમાં મારી કંઈ ભૂલચૂક થાય તો માફ કરજો. બરાબર. હવે એમાં અત્યારે આપણે જે જીવન ક્રિયાની વાત છે તો એમાં સૌથી પહેલી તો આપણે 10 ક્રિયાની જે વાત કરી રહ્યા છે, તો 10 ક્રિયામાંથી આપણા અંદર અત્યારે આપણે અનુભવી શકીએ એવી 4.5 ક્રિયાઓ જ છે. 4.5 ક્રિયાઓની પણ એવી વસ્તુ છે કે એને સતત કોન્સ્ટન્ટ આપણા અંદર ચાલુ છે. એને અનુભવ જો કરવો હોય તો એનું આપણે ધ્યાન આપવું પડશે આપણા અંદર જ જે થઈ રહ્યું છે કોઈ પણ વસ્તુમાં. તો આપણે એને થોડુંક એક એક્ઝામ્પલથી સમજીશું કે આપણા ત્યાં આગળ હવે સમજો કે આપણે કોઈ જગ્યાએ જઈ રહ્યા છીએ અને વાહનોનું આવન ગવન થઈ રહ્યું છે આજુબાજુ, તો એમાં આપણી નજર આજુબાજુ ઘણી બધી જગ્યાએ પડતી જ હોય છે. તો સામે હું તમને કહું કે ગાડી આવતી હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ આવતી હોય તો આપણા અંદર હું તમને કહું કે અત્યારે ગાડી લેવાની નથી, પણ તો પણ ગાડીને જોઈને ક્યાંક ના ક્યાંક આપણા અંદર આ બધી કે કોઈ પણ વસ્તુને જોઈને કોઈ પણ એક પ્રક્રિયા તમે જોશો તો એ બધાને લઈને આ 4.5 ક્રિયાઓ આપણા અંદર ચાલુ હશે. હવે ગાડી લેવાની નથી તો એના અંદર હું તમને કહું ગાડીને જોઈને આપણા અંદર શું શું અત્યારે ચાલે છે ચયન આપણે 4.5 ક્રિયાઓ તો આપણે એને એક વખતે જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં તો એક ચિત્રણ છે કે ચિત્રણ એટલે જેટલી ગાડીઓ કે જેટલું હું તમને કહું રસ્તામાં આપણે અંદર દેખાય છે, બરાબર, રસ્તામાં આવે છે, તો એમાં આંખમાં આપણને જેટલી વસ્તુઓ દેખાય છે એમાં આપણું જેટલી વસ્તુઓ પર ધ્યાન જાય છે એટલું જ વસ્તુઓનું ચિત્રણ આપણા અંદર પડે છે ક્યાંક ના ક્યાંક. અને એ ચિત્રણમાં એવી વસ્તુ છે કે હું તમને કહું કે આપણે એક ગાડી પસાર થઈ, બીજી ગાડી પસાર થઈ, તો એ ચિત્રણ તો આપણા અંદર પડ્યા જ રાખે છે, કોન્સ્ટન્ટ છે, એ કોન્સ્ટન્ટ પ્રક્રિયા છે. અને એમાં હું તમને કહું કે આપણને કોઈ XYZ ગાડી દેખાય છે કે આપણે એવી વાત કરીએ કે ભાઈ મારુતિની બ્રેઝા છે, ચલો એ દેખાઈ ગઈ મને, તો દેખાઈ તો એમાં તરત આપણું એક કમ્પેરિઝન હું તમને કહું કે ચાલુ થાય, તુલન ચાલુ થાય. એનું તુલન એટલે શું? કમ્પેરિઝનની વાત છે. એ કમ્પેરિઝન કોના સાથે ચાલુ થાય? તો એ બીજી કોઈના કોઈ હું તમને કહું કે આપણા અંદર કાં તો પૂર્વ ચિત્રણ પડેલા છે એના સંદર્ભમાં, કાં તો અત્યારે આપણે જે વસ્તુ છે તો એમાં કે નહીં ચલો કે આ ગાડી દેખાવામાં આવી સારી છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે હું તમને બીજી ગાડીની વાત કરીએ કે XUV 300 છે મહિન્દ્રાની, તો ના આના કરતાં પેલી સારી છે, આ સારી છે. એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એ તુલન આપણું ચાલુ થઈ જાય કે બીજી બધી ઘણી બધી વસ્તુઓ સાથેનું એ કમ્પેરિઝન ચાલુ થઈ જાય. એને આપણે કહીએ છીએ તુલન. એ કમ્પેરિઝનમાં આપણે જોઈએ તો દરેક ગાડીની એક પોતાની આપણે શું કહેવાય કે એક એની એક પોતાની પેલી આપણે પ્રોપર્ટી છે. હા, પ્રોપર્ટી એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? હા, સ્પેસિફિકેશન એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? પણ હા, એની પોતાની એક ઓળખ છે કે જેના લીધે આપણે એનું કમ્પેરિઝન કરી રહ્યા છે કે મને આની લાઇટ ગમે છે, નહીં મને આની અત્યારે શેપ ગમે છે, મને આનું અત્યારે સાઇઝ ગમે છે, નહીં આની અંદરની બેસવાની વસ્તુ એકદમ કમ્ફર્ટેબલ છે, આ બધી વસ્તુઓ મને ગમે છે. તો જ્યારે કમ્પેરિઝન થઈ રહ્યું છે તો એ કમ્પેરિઝનમાં જે સ્પેસિફિકેશન, જે પ્રોપર્ટીનું જે આપણે અત્યારે ડિટેલિંગ કરીએ છીએ કે નહીં આની સીટ આવી છે એટલે મને આ ગમે છે, આની લાઇટ આવી છે એટલે મને એ જે આપણે સ્પેસિફિકેશનને જે ડિટેલિંગ કરીએ છીએ એ ડિટેલિંગ એ વિશ્લેષણ છે. દરેક પ્રક્રિયા કે દરેક વસ્તુનું આપણે જે તુલન થઈ રહ્યું છે એ તુલનના અંદર જે પ્રોપર્ટીની ડિટેલિંગની વાત છે એને વિશ્લેષણ કહીએ છીએ આપણે. એ વિશ્લેષણ પછી આપણે એનું ક્યાંક ને ક્યાંક આસ્વાદન એટલે શું? કે આસ્વાદન એટલે ક્યાંક આપણે એવું સમજીએ કે સિલેક્શનની પ્રક્રિયા છે. સિલેક્શનની પ્રક્રિયા એટલે હવે હું એને રુચિમૂલક, મૂલ્યમૂલક અને લક્ષ્યમૂલક આ ત્રણે લઉં છું. હવે અત્યારે ગાડી લેવાની નથી તો મારું આસ્વાદન કયા સંદર્ભે થઈ રહ્યું છે? તો લક્ષ્યમૂલક. ગાડી નથી લેવાની એ પણ એક લક્ષ્ય છે. ગાડી નથી લેવાની એ પણ એક લક્ષ્ય છે. એ લક્ષ્યમૂલક એક મારું સિલેક્શન થયું. એ સિલેક્શન થયું એટલે એના પછી ચયન જે વાત છે, તો ચયનમાં પણ શું છે? ચયન બેઝિકલી એક કાર્ય કાં તો વ્યવહાર. આપણા અંદર જે પણ આપણે કોઈ પણ વસ્તુ એક્ઝિક્યુશનમાં જે પણ કાર્ય કરીએ, કાં તો કોઈ માણસ સાથે આપણે બે વસ્તુ થાય, કાં તો આપણે માણસો સાથે કોઈના કોઈ આપણે અરસપરસમાં આપણે કોઈ પણ એક વ્યવહાર થાય, કાં તો એના અંદર હું તમને કહું કે કોઈ પણ આપણે ફિઝિકલ વસ્તુ સાથે કોઈ પણ સુવિધા સાથે આપણે કાર્ય કરીએ, કાં તો આપણે શ્રમ કરીએ કે જે પણ વસ્તુ કરીએ. તો એ કાર્ય કાં તો વ્યવહાર જે વસ્તુ થાય છે એને આપણે કહીએ છીએ ચયન, જે એક્ઝિક્યુશનની વાત છે. તો એમાં મારે નથી લેવાની એ પણ એક એક્ઝિક્યુશન છે.
જ્યારે ગાડી લેવાની આવે છે ત્યારે તમારા મગજમાં પાછું એ ચિત્રણ પણ ઊભું થાય છે ફરીથી કે નહીં આ ગાડી હવે ફરીથી પાછું એ જ વસ્તુનું આખી એક પ્રક્રિયા ચાલુ થશે કે ગાડી લેવાની છે તો હવે એ જ વસ્તુમાં હું તમને કહું કે તુલન ને એ બધી વસ્તુઓ થશે જ તુલન સાથે એના સાથે સાથે હું તમને કહું વિશ્લેષણ પણ થશે તમે ડિટેલિંગમાં હજી વધારે ડિટેલિંગમાં જશો એના પછી આસ્વાદનના ક્રેસમાં હવે તમારા ક્યાંક ને ક્યાંક કે કઈ ગાડી લેવી એ એ વસ્તુ પર નિર્ભર કરશે કાં તો તમારી પોતાની રુચિ ઉપર કાં તો તમારા પરિવારજનમાં કોઈને ગમતી હશે એ ગાડી લેશો તો એ સંબંધ ઉપર હાલના લેવલે સંબંધમૂલક આસ્વાદન થશે કાં તો તમારી પોતાની એક અપેક્ષા છે કે નહીં મને આ ગાડી ગમે છે એટલે હું આ લઉં છું તો એ રુચિમૂલક આસ્વાદન છે અને એનું જે એક્ઝિક્યુશન છે કે હું ગાડી લેવા ગયો અને ગાડી લઈ લીધી હવે આપણે કોઈ પણ એક પ્રક્રિયા જ્યારે પકડીએ કે ગાડી લેવા ગયો એમાં આ બધી જ વસ્તુઓ ચાલુ છે દરેકે દરેક એટલે આપણે આમાં આ શું છે કે આ અત્યારે જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણા સામે પીરસાય છે એટલે આપણને એક થોડું અઘરું લાગે છે પણ આને જ્યારે સૂક્ષ્મતાથી આપણે એક આપણા અંદર જે પણ વસ્તુઓ થઈ રહી છે એને જ્યારે આપણે ડિટેલિંગમાં એને કરવા જઈ આપણે એને બાયફર્કેટ કરવા જઈશું આના સંદર્ભમાં તો આમાં ખાલી અત્યારે સમજવા પૂરતું ઇનિશિયલ લેવલે આપણે જ્યારે વાત કરીએ તો એને એ રીતે સમજવાની વાત છે કે તુલન એટલે કમ્પેરિઝનની વાત છે કે કોન્સ્ટન્ટ આપણા અંદર ચાલુ ને ચાલુ જ છે પછી ચિત્રણ એટલે આપણા અંદર પડતા જે ઓલવેઝ કોન્સ્ટન્ટ આપણા જેનું ધ્યાન જાય છે એનું ચિત્રણ આપણા અંદર ખાસું ઊંડું પડે છે અને આપણને વસ્તુ યાદ પણ રહી જાય છે આપણને ઘણી જૂની વસ્તુઓ પણ યાદ હોય છે ચિત્રણ તુલન પછી વિશ્લેષણ એટલે એની ડિટેલિંગની વાત છે કે આપણે હું તમને કહું કે એની કોઈ પણ સ્પેસિફિકેશન છે તો એ સ્પેસિફિકેશનનું આપણે એકદમ ડિટેલિંગ કરીએ આસ્વાદન એટલે એ તમે કાં તો રુચિમૂલક કરો છો કાં તો સંબંધમૂલક કાં તો મૂલ્યમૂલક એટલે એ સિલેક્શનની વાત છે અને જે ચયન છે એ એક્ઝિક્યુશનની વાત છે એટલે આમાં હવે કોઈને હજી પ્રશ્નો હોય તો જરા કરજો મેં મારા રીતે જે સરળ શબ્દોમાં થતું હતું એ કીધું છે तो अभी आप शुरू कर सकते हैं हाँ बढ़िया ठीक है तो क्या होता है कि कल से जो हम चर्चा कर रहे हैं कि मेरा दुनिया में हर चीज पे ध्यान है केवल किस पे नहीं ध्यान है मेरे खुद पर मेरा ध्यान नहीं है हम क्या कह रहे हैं मानव है तो मानव जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है उसको मानव बोला है तो शरीर का अध्ययन तो हमने जीव विज्ञान में कर लिया है मेडिकल साइंस में कर लिया है जीवन का अध्ययन करने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है इस सभा में इस शिविर में पहली बार जीवन नाम के किसी सच्चाई की तरफ ध्यान गया वो भी ध्यान पहले है मतलब शरीर के अलावा भी कुछ है ये परंपरा में है कोई और नाम से आत्मा है जीवात्मा है ऐसे करके शब्द हैं लेकिन उसको पहचाना कैसे जाए तो उसको पहचानेंगे कैसे तो अस्तित्व में क्या है अस्तित्व में क्रिया ही है हम आज तक जिस चीज को पहचाने हैं क्रिया रूप में ही पहचाने हैं जो क्रिया है उसी को पहचाने हैं क्रिया नहीं है तो उसको हमने नाम ही कुछ और दे दिया और उसको पहचान भी नहीं पाया आज तक जितना भी हमने उपलब्धि की है हम किसी न किसी क्रिया को ही पहचाने हैं नियम को पहचाने हैं क्रिया को पहचाने हैं जो हम इतनी टेक्नोलॉजी में सब सुविधा उपलब्ध करा दिए मकान बनाने की सुविधा गाड़ी की सुविधा मोबाइल की सुविधा इंटरनेट की सुविधा आने जाने की सुविधा ये सारी सुविधा उपलब्ध कराया तो एक्चुअली क्या चीज को पहचाने कुछ क्रियाओं को पहचाने भौतिक रासायनिक पूरा कृषि विज्ञान क्या है रासायनिक क्रिया को ही पहचानना है तो हम क्रियाओं को पहचानते हैं तो अपने को भी पहचानेंगे तो किसमें पहचानेंगे अगर पहचानने की बात आएगी तो क्रिया ही पहचानना है यहाँ क्या सूचना दी गई कि मैं जीवन हूं ये कैसे पहचाना जाए तो मेरे में भी क्या कोई क्रिया हो रही है अगर मेरे में क्रिया हो रही है तो पहचाना जाए तो ऐसा हमने कोशिश करने यहाँ पे कोशिश किया देखा जाए मेरे में क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है तो कम से कम न्यूनतम इस समय बैठे हुए भी आपके अंदर आस्वादन और चयन तो हो ही रहा है कोई न कोई स्वाद हो रहा है कोई न कोई टेस्ट आ रहा है आपको
टेस्ट मतलब जीभ वाला नहीं केवल, हाँ जब आस्वादन बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं जीभ से ही केवल होता है। तो जीभ से, कान से, मतलब इंद्रिय, वो इंद्रियातीत है, आपके अंदर हो रहा है। तो एक्चुअली आस्वादन हमेशा सुख की आशा में ही होता है। जो भी आस्वादन होता है वो सुख की आशा में होता है। तो मेरे अंदर अभी भी आस्वादन चल रहा है, इसीलिए मैं कभी ऐसे बैठा हूं, कभी ऐसे बैठ रहा हूं, कभी ऐसे बैठ रहा हूं। क्यों? मुझे ऐसे थोड़ा आराम मिल जाएगा, ऐसे थोड़ा आराम मिल जाएगा, कि ऐसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो कुछ पोजीशन हम बदल रहे हैं बैठे बैठे। तो ये क्या कर रहे हैं? चयन कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं। किसमें? आराम मिल जाएगा। आराम क्या है? एक प्रकार का सुख है। तो सुख की आशा में हम चयन कर रहे हैं। उसके पहले एक आस्वादन है ही है, ऐसे कर लेंगे तो हो सकता है आराम मिल जाए। एक आस्वादन है मेरे पास, आस्वादन बना ही हुआ है, ऐसे करेंगे तो आराम मिल जाए। तो क्या है? आस्वादन मेरे में है, मतलब मेरे में आस्वादन हो रहा है स्थिति के रूप में। उसके आधार पे मैं चयन करता हूं। तो अभी ये जो सारी स्थिति का आस्वादन हो रहा, कौन सा हो रहा? रुचि मूलक हो रहा है। तो अभी ज्यादातर सभा में जो बैठे हुए हम सभी हैं, हमने एक यात्रा की है, उसमें हमने ज्यादातर अभी तक रुचि मूलक आस्वादन ही किया है। कभी कभी संबंध मूलक किया है। कुछ लोग होते हैं जो संबंध मूलक आस्वादन को ही ऊपर रख देते हैं, रुचि मूलक को नहीं महत्वपूर्ण रखते। ऐसे लोग भी मिलते हैं जो संबंध को ध्यान में रखते हैं, संबंध मूलक को ही मूल्य मूलक भी बोलते हैं। कि संबंध की उपयोगिता है, मूल्य क्या है? मूल्य मतलब उपयोगिता। तो संबंध भी कोई उपयोगी चीज है, उसमें मूल्य है, उसमें उपयोगिता है। तो मैं संबंध को ध्यान में रख करके अपना आस्वादन करता हूं, तो रुचि मूलक आस्वादन उसमें समा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपके साथ संबंध पूर्वक जी रहा हूं और मैंने संबंध को पहचान लिया है, आप मेरे कोई संबंधी हैं, मेरे अंदर उस संबंध को लेकर कोई आस्वादन है। अब मैं क्या करूंगा? आपकी रुचि का ध्यान रखूंगा कि नहीं रखूंगा? तब भी रुचि का ध्यान रहता है। ऐसा नहीं कि संबंध में रुचि का ध्यान खत्म हो जाता है। संबंध में रुचि का ध्यान आप भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। अगर आपको करेले की सब्जी पसंद नहीं है तो ऐसा थोड़ी करेंगे जबरदस्ती खिलाएंगे, नहीं जी आप मेरे संबंधी हो, करेला तो जरूर खाओ। क्यों खाओ? क्योंकि मैं खाता हूं इसलिए आप भी खाओ। हाँ, तो कहां गया? तो संबंध मूलक आस्वादन रहेगा ही नहीं, फिर संबंध नहीं चलेगा। तो रुचि का ध्यान रहता ही है संबंध मूलक में, लेकिन संबंध प्राथमिकता में आ जाता है। मतलब संबंधी, मतलब मेरी इच्छा में मेरी रुचि प्राथमिकता में नहीं रहती, मेरी संबंधी की रुचि रहती है। अब अगर अगले ने संबंध को पहचान लिया है तो भी मेरी रुचि का ध्यान रखता ही है। क्या बात समझ में आई? कि संबंधी अगर मेरे से संबंध को स्वीकार कर लिया है तो मेरी रुचि का ध्यान रखता ही है। मैंने संबंधी को स्वीकार लिया है तो संबंधी ने भी रुचि का ध्यान रखता ही है। तो बेटा अगर नौकरी से आया है और उसको मटर पनीर अच्छा लगता है और जैसे ही घर में घुसता है और देखता है पालक कटा हुआ है तो बोलता माँ पालक क्यों नहीं बनाई? तो बोले नहीं बेटा तू आने वाला था, तुझको तो मटर पनीर पसंद था इसलिए मैं पालक बना दी, नहीं अरे मटर पनीर बना दी, नहीं तो मैं तो पालक बनाने वाली थी। तो बेटा भी बोलता हाँ आपको पालक तो बहुत पसंद है तो थोड़ा सा बना लो ना। नहीं छोड़ो क्या दो सब्जी, नहीं नहीं बना लो, थोड़ा पालक भी बना लो, कोई बात नहीं है। अब क्या हो रहा है? संबंध चूंकि वहां पर निर्वाह हो रहा है इसलिए दोनों एक दूसरे की रुचि का ध्यान रख रहे हैं। तो इससे ये मैसेज बिल्कुल ही नहीं जाता है कि जहां संबंध मूलक आता है वहां रुचि मूलक खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। संबंध मूलक को ध्यान में रखते हुए रुचि मूलक नियंत्रित हो जाता है, इतना ही है। मतलब मेरी रुचि ही काम नहीं करेगी, वहां एक नियंत्रण हो जाएगा। आपकी रुचि भी काम करेगी, मेरी भी काम करेगी, दोनों समृद्धि एक दूसरे के लिए पूरक हो जाएंगे। ऐसे ही जब लक्ष्य का पता चल जाता है कि मैं एक मानव हूं,
मैं एक मानव हूँ, मतलब जीवन हूँ, शरीर को चलाता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ, निरंतर सुख मेरी प्यास है। आप भी एक मानव हैं, आप भी जीवन और शरीर ही हैं, जीवन सुखी होना चाहता है, तो हम और आप संबंधी हैं, तो हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। क्या लक्ष्य है? दोनों निरंतर सुख को पाना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसा जिया जाए कि दोनों अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो अब क्या हो गया? वो जो संबंध है, जो संबंध था, वो वो लक्ष्य के अर्थ में नियंत्रित हो गया, उसका नियंत्रण लक्ष्य में हो गया। तो रुचि का नियंत्रण संबंध में, संबंध का नियंत्रण लक्ष्य में हो गया, तो स्वनियंत्रण हो गया। अब इसमें नियंत्रण कराया नहीं जा रहा है, नहीं जी आप मानो, नहीं जी आप मानो, लक्ष्य होता है, कोई बड़ी चीज होती है, आप नहीं जानते हो, निरंतर सुख होता है, वो शिविर में बताया गया है। हाँ जाके बताइए, वो शिविर में बताया गया है, आप भी निरंतर सुख चाहते हो। अच्छा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं। अच्छा, कैसे लगा आपको? शिविर में बताया गया है। तो ऐसा नहीं है, आपको रियलाइज होगा कि निरंतर सुख कोई चीज है, उसी को मैं चाहना, मैं बचपन से उसी को तलाश रहा हूं, आप भी उसी को तलाश रहे हैं। इसके अर्थ में हम दोनों संबंधी हैं। तो हम लोगों का दिनचर्या, हम लोगों की जीवनचर्या ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए कि केवल शरीर मूलक नहीं, जीवन मूलक भी जिया जाए, जीवन मूलक जीने का दिनचर्या बनाया जाए। हम लोग, ये कैसे आएगा सुख? समझ से आएगा। तो हम जो अपनी दिनचर्या बना रहे हैं, उसमें सुविधा के अर्थ में अपना एक समय दे रहे हैं, लेकिन कोई समय समझ के लिए भी लगाया जाए, जिससे कि हम भी निरंतर सुख को पा सकें, आप भी निरंतर सुख को पा सकें। ऐसा करते हैं तो मेरा आस्वादन बदल जाता है, वो आस्वादन लक्ष्य मूलक हो जाता है, मेरे संबंधी का भी लक्ष्य मूलक हो जाता है, मेरा भी लक्ष्य मूलक हो जाता है। तो ये दो क्रिया तो मेरे में अभी भी चल रही है, आस्वादन और चयन, आस्वादन और चयन, आस्वादन और चयन। अब होता क्या है? इस आस्वादन को सपोर्ट तुलन से मिलता है। तुलन क्या कह रही है? प्रिय का आस्वादन करो, उसके आधार पर विश्लेषण करो। जैसे बोल रहे थे, उसके स्पेसिफिकेशन में जाता है। हित का आस्वादन करो, लाभ का आस्वादन करो, तो ये बोलती है हित का आस्वादन करो। जैसे मेरा रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है, इच्छा हो रही है, रसगुल्ले का चित्रण है, अब मेरी इच्छा हो रही है, मेरे में चित्रण भी है रसगुल्ले का। तो अब तुलन क्या करेगा? मुझे प्रिय है क्या? रसगुल्ला, लेकिन मुझे शुगर हुआ है। तो फिर यही तुलन क्या कहेगा? वृत्ति क्या कहेगी? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ, डायबिटीज हुआ, रुक जाओ। लेकिन संवेदना शरीर से आ रही है, मन इसके दबाव में आ रहा है, वृत्ति का कहना ही नहीं मान रहा। वृत्ति कह रहा थोड़ा रुको, हित को ध्यान रखो, लेकिन मैं रुचि मूलक आस्वादन ही चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि शरीर से संवेदना से डिमांड आ रही है। अब रुक ही नहीं रहा, नहीं रुका, और मन ने निर्णय ले लिया। तो क्या हुआ? मन ने वृत्ति के संकेतों को नहीं स्वीकारा, मन वृत्ति के संकेतों को नहीं स्वीकारा। वृत्ति मन से ज्यादा विकसित बल है, वृत्ति मन से ज्यादा विकसित बल है, लेकिन मन ने ज्यादा विकसित के संकेत को नहीं स्वीकारा। मन से कम विकसित शरीर है, उसने कम विकसित के संकेत को स्वीकार लिया और चयन कर लिया, रसगुल्ला खाएंगे। तो क्या होगा? शुगर बढ़ जाएगा, आप दुखी हो गए। ऐसा दुख क्यों आया? ऐसा दुख क्यों आया? क्योंकि वृत्ति के संकेत को मन ग्रहण नहीं किया, मतलब अधिक शक्ति, अधिक बल कम बल को नहीं चला पाया, बल्कि कम बल ने अधिक बल को चलवा दिया। इसमें क्या हो रहा? दोनों में द्वंद्व हो गया, मन और वृत्ति में। मन और वृत्ति में द्वंद्व हो गया, हार्मनी नहीं रही, तालमेल नहीं रहा। क्योंकि वृत्ति ने कहा हित को ध्यान रखो, मन ने कहा नहीं शरीर की डिमांड है रसगुल्ला खाना, और चयन कर रहा है। वृत्ति बोल रहा रुक जाओ, शुगर है, फिर भी नहीं मान रहा। तीन दोनों में द्वंद्व हो गया, विषमता आ गई।
इसी विषमता का नाम है दुख। तो एक्चुअली रसगुल्ला खाए उसके बाद दुख हुआ ऐसा नहीं है, आप उसके पहले ही दुखी हो चुके हैं। क्या उजाला? हाँ, तो रसगुल्ला खा के दुखी होंगे वो तो बाद में होंगे, पहले आप अपने विचारों में ही दुखी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बोलते नहीं है जी, अंदर से कोई बात आ रही है कि मत करो, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि ये मत करो। अंदर मतलब क्या? अंदर मतलब वृत्ति से एक आवाज आई कि हित को ध्यान रखो, रसगुल्ला मत खाओ, और मैं उस बात को मान नहीं रहा हूं। तो बात को मान नहीं रहा हूं अर्थात अंदर की आवाज है, उसको मैं इनकार कर रहा हूं, तो उसी समय मैं दुखी हो चुका हूं। मैं पहले ही दुखी हो चुका हूं, जबरदस्ती बाद में रसगुल्ला भी खा रहा हूं। तो कुल मिला के क्या हुआ? ये अधिक बल है, ये कम बल है, और शरीर इससे भी, शरीर स्थूल है, स्थूल कम ताकतवर होता है, और ये सूक्ष्म है, तो इससे ज्यादा, तो शरीर से ज्यादा ताकतवर जीवन है, क्योंकि शरीर भौतिक रासायनिक क्रिया है, इसकी एक आयु है। जीवन अक्षय बल, अक्षय संपन्न है। वृत्ति को बल बोलते हैं, मन को बल बोलते हैं, ये दोनों अक्षय हैं। अक्षय मतलब जो क्षय ही ना हो। ऐसे ही इच्छा, विचार, आशा, इसको शक्ति बोलते हैं, ये भी अक्षय है। आप कितना भी इच्छा करिए कम होगी, कितना भी विचार करिए कम होगा, कितना भी आशा करिए कम नहीं होगा। तो अक्षय है। तो जब अक्षय है, ये भी अक्षय है, ये भी अक्षय है, तो ये ज्यादा ताकतवर है। तो अभी ज्यादा ताकतवर को कम ताकतवर चला रहा है, अभी ज्यादा ताकतवर को कम ताकतवर चला रहा है, अर्थात मेरा शरीर मुझे चला रहा है, मेरे शरीर की संवेदनाएं मुझे चला रही हैं। आहार निद्रा भय प्रजनन, आहार निद्रा भय प्रजनन अगर चला रहा है, इसका मतलब यह है कि शरीर मुझे चला रहा है, मैं शरीर को नहीं चला रहा हूं। तो अभी ज्यादातर हमारे साथ यही हुआ है कि शरीर मुझे चलाया है अब तक, मैं शरीर को नहीं चलाया हूं। तो जब कम शक्ति ज्यादा शक्ति को चलाएगी तो अव्यवस्था ही होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस शक्ति को नहीं पहचाना। तो मेरे में आस्वादन और चयन चल ही रहा है, मेरे में तुलन और विश्लेषण हो रहा है, इसको जांचा जाए और रखा जाए। और कोई व्यक्त करिए ऐसे, या जय बताओ क्या बोल रहे थे, बचपन से कुछ बता रहे थे हमको, वो सबको बताओ। हेलो, मैं छोटा था तो मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई कि आज मैं जाऊंगा स्कूल। तो मैं गया स्कूल। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो है, जो आपने ये 4.5 चीज़ें बताई है, वो बचपन से ही होती है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैं छोटा था तो मेरे में इच्छा हुई तो मैं स्कूल गया, और फिर वहाँ जाके मेरे मन में एक विचार आया कि आज थोड़ी कर लेते हैं मौज मस्ती। तो हमने मौज मस्ती भी कर ली। फिर मेरे को, क्योंकि मेरी उसमें रुचि थी, तो आ गया रुचि मूलक। और फिर आता है आशा। मेरे को ऐसी आशा थी कि आज तो नहीं पकड़ जाना है, टीचर भी आए, कोई भी कुछ भी हो जाए, पर आज तो मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, ऐसी मुझको आशा थी। तो वो हो गया। लेकिन पकड़ा गए तब? नहीं, मैं पकड़ा भी नहीं गया। अच्छा, इतने चालाक थे। हाँ, तो ये मैं अपने हित के बारे में सोच रहा हूँ, और ये इससे मेरा लाभ होने वाला है। बढ़िया, बहुत अच्छा। इनका कहने का आशय ये है कि मैं जब छोटा था, अभी हमसे जो चर्चा कर रहे थे कि जीवन क्रिया, इसका मतलब मैं जब छोटा था तब से चल रही है। क्या उत्तर है? अभी तो हो गया होगा काम भर के लाइट, नहीं हुआ? हो गया जी। तो ये जो कह रहे थे जय
कि मैं जब छोटा था, अब ये जीवन क्रिया को अपने बचपन में ले जाके देख रहे थे कि मैं जब छोटा था और स्कूल गया था तब भी मेरे में चल रही थी, तो क्या तभी से चल रही थी? तो मैं कह रहा हूं पैदा होने से ही शुरू हो जाती है, बल्कि जीवन तो अस्तित्व में बना ही रहता है, शरीर मिलता है। तो एक्चुअली जीवन शरीर को चलाना कब शुरू करता है? जीवन शरीर को चलाना कब शुरू करता है? तो हर माँ को ये पता होगा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में 4.5 से 5 महीने का होता है तो उस समय उसके पेट में मूवमेंट शुरू होता है, तब बोलते हैं देखो बच्चा चलने लगा है। तो इससे अनुमान क्या बनता है कि 4.5 से 5 महीने में जो शरीर बन रहा है माँ के गर्भ में, उसमें 4.5 से 5 महीने में ब्रेन डेवलप हो जाता है। जब ब्रेन डेवलप हो जाता है तो अस्तित्व में जीवन है ही। कोई जीवन श्रेष्ठता विधि से, उसकी आगे चर्चा करेंगे किस विधि से चलाता है, श्रेष्ठता विधि से उस शरीर को चलाने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। फिर वो शरीर चलाने लगता है, पेट में मूवमेंट होता है और माँ बोलती है कि बच्चा तो अब रेंगने लगा है। ऐसा है कि नहीं है माँ लोग? उस समय से ही चलाना शुरू कर दिया था, 4.5 महीने से शरीर को। और जो जीवन चलाना शुरू कर दिया था उस समय भी इतने ही क्रियाओं के साथ था। तो जन्म, जब शरीर जो है जब मां के गर्भ से बाहर आया उसके पहले ही जीवन उसको चलाना शुरू कर दिया था। तो है ही है, वो क्रिया बनी। जीवन की क्रिया अक्षय है, इसलिए वो चलती ही रहती है, इसीलिए उसमें कुछ कम नहीं पड़ता। इससे एक और अनुमान बनता है कि जीवन की क्रियाएं अक्षय हैं। अक्षय का मतलब उसका क्षय नहीं होता। तो जिसका क्षय नहीं होता वो मरेगा, जिसका क्षय नहीं होता वो मरेगा नहीं मरेगा। इससे क्या अनुमान बनता है कि जीवन अमर है। जब अब कहा जा रहा है कि जीवन अमर है तो सतर्क कहा जा रहा है, केवल एक कह के छोड़ नहीं दिया जा रहा कि जीवन अमर है, आत्मा अमर है। यहां कहा गया जीवन अमर है तो सतर्क कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर कल्पना होती है। कल्पना को ही इच्छा विचार आशा बोला है, उसी को हमने क्रिया के रूप में आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण, चित्रण के रूप में पहचाना है। अभी 4.5 क्रिया को देखा है, उससे लगता है कल्पनाशीलता मेरे में अक्षय है, होती रहती, कमी नहीं पड़ती। बीमार हो जाओ, बुढ़े हो जाओ, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, सारा काम दूसरा कोई कराता है, बिस्तर पे ही सारा शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन कल्पना तब भी चली रही है। तो कल्पना का शरीर के स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। अरे बीमार होगा तो बीमारी की कल्पना करेगा, लेकिन करेगा। स्वस्थ होने की कल्पना करेगा, लेकिन करेगा। तो कल्पना करता ही है। इससे अनुमान बनता है कि कल्पनाशीलता मेरे में है और ये अक्षय है। इससे अनुमान बनता है अगर जीवन में कल्पनाशीलता है और वो अक्षय है, इसका मतलब जीवन अमर है। तर्क से बताया, तर्क के साथ रखा जा रहा है। तो परसों भी मैं कहा था, कल भी कहा था, यहां जो भी कंटेंट रखा जाएगा वो कोई रहस्य नहीं रखा जाएगा, उसको बाकायदे हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे तर्क विधि से, क्योंकि पहले तो तर्क ही रखेंगे। देखिए, विचार होता है, फिर तर्क होता है। जैसे कोई चीज हम मान लेते हैं, मान के फिर तर्क करते हैं, तर्क को ही विचार बोलते हैं। फिर वो तर्क तृप्त होता है, उसको समझ बोलते हैं। तो अभी हम तर्क कर रहे हैं, तर्क से किसी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जब उस सच्चाई पे पहुंच जाएंगे, उसका सुख हमको खुद ही होगा, वो समझ बन जाएगी। जैसे हम लोग घर में अभी हाँ जी, कोई बोलने वाले हैं जी। कोई बच्चा
कम उम्र में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसमें कई भाषाओं का ज्ञान होता है, कई शास्त्रों का ज्ञान होता है। अपने आप? हाँ, वो कहाँ से आता है? नहीं, अपने आप तो नहीं होता होगा, मतलब उसको बताया गया तभी होता होगा। नहीं, वो पैदा होते ही बोलने लगता है शास्त्र? नहीं, 3, 4, 5 साल का बच्चा भी, अभी वो कौटिल्य हुआ था तो उसमें वो ज्ञान इतना कहाँ से आया था इतना? अब कौटिल्य कहाँ चला गया? नहीं, कई बच्चे ऐसे होते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या है, इससे शायद आप ये यहाँ तक जाना चाहते हैं कि बहुत से बच्चों की मेमोरी पीछे से आ जाती है। तो कुछ बच्चों की आ जाती है उसमें, मतलब कुछ जीवन मेमोरी के साथ आ जाते हैं, लेकिन वो व्यवस्था के अर्थ में है नहीं। जैसे बहुत सारे जन्म की मेमोरी लेके आप यहाँ बैठे हो तो आप जी नहीं पाएंगे, तो व्यवस्था के अर्थ में नहीं है। मेमोरी लेके जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोलते हैं मैं वहाँ का पैदा हुआ था, मेरे माँ बाप का ये नाम है, मेरे गांव का ये नाम है, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं। तो यह एक दुर्घटना है, ये हकीकत नहीं है ना। अगर होता तो नियम होता तो सबके साथ होना चाहिए। और जितने भी बच्चों के साथ ऐसी घटना घटी, मैं 1-2 बच्चों से मिला हूं, क्योंकि सभा में प्रश्न आते हैं तो फिर खोज के मिलना ही पड़ता है। जितने भी बच्चों के साथ ऐसी घटना घटी कि वो पैदा होने के बाद जब बोलना शुरू किए तो बताना शुरू कर दिए, मेरा ये गांव है, मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता का ये नाम है, वो ये काम करते हैं, वो बताने लगता है। लेकिन एक समय के बाद उसकी वो मेमोरी गायब हो जाती है, वो बनी नहीं रह पाती, नहीं रह पाई बनी हुई। या कुछ बच्चों की तो कुछ समय बाद डेथ हो गई, कुछ बच्चों की उस समय के बाद मेमोरी नहीं रही। इसका मतलब ये नियम तो नहीं है, क्योंकि नियम किसको बोलते हैं, वो सभी के साथ होगा। हाँ, लेकिन इसमें मैं जो संभावना देखता हूं कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी जिज्ञासा ही अलग तरह की होती है। बहुत सारे बच्चे जिनकी जिज्ञासा ही अलग तरह की है, उनका जिज्ञासा आहार निद्रा भय प्रजनन है ही नहीं। वो बोलते हैं दुखी क्यों है, जैसे बुद्ध को हुआ। क्या हुआ बुद्ध को? तो कुछ बच्चे मंद बुद्धि के क्यों होते हैं? हाँ, मंद बुद्धि का मतलब ये हुआ कि ब्रेन में कोई गड़बड़ी है, मानसिक। भाई जीवन है और शरीर है, जीवन और शरीर के बीच में कम्युनिकेशन का जो मोडेम है, मोडेम इंटरनेट मोडेम से चलता है ना, तो मोडेम क्या है? ब्रेन ही मोडेम है। अगर मोडेम में कोई गड़बड़ी है तो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होता, तो उसी को मंद बुद्धि बोलते हैं, उसी को मानसिक विकलांग बोलते हैं, सब हम भाषा बोलते हैं। वो कब वो मंद बुद्धि कहाँ से वो अपने माँ के गर्भ में होता है तब हो जाता है? भाई जैसे बच्चों के किसी के हाथ नहीं रहता, किसी के पैर नहीं है, किसी का कान एक नहीं है, वैसे ही किसी का ब्रेन का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुआ किसी कारण से। जीवन तो अक्षय शक्ति संपन्न है, लेकिन जीवन और शरीर के बीच में जो कम्युनिकेशन का जो मोडेम है वो ठीक नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ी है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि जिज्ञासा कहां से आती है, जैसे बुद्ध की जिज्ञासा आ गई। क्या जिज्ञासा आ गई? वो बचपन से दुख देखे ही नहीं थे, ऐसे परिवार में थे, राज परिवार में, वो दुख देखे ही नहीं, उनको दुख से कोई साक्षात्कार ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बाहर निकले उन्होंने क्या देखा? एक बीमार देखा। बोले ये क्या है? बोले बीमार है। अच्छा क्या हो रहा है? बोले इसको दर्द हो रहा है। अच्छा तो दुख हो रहा है? दुख हो रहा है, दुख क्या होता है? फिर एक मृत व्यक्ति को देखे, ये क्या है? कंधे पे लाद के ले जा रहे हैं। बोले मर चुका है, मर चुका है, इसके परिवार वाले रो रहे हैं। अच्छा क्यों रो रहे हैं? वो दुखी हैं, दुख होता है। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति देखे जो अपना काम ही नहीं कर पा रहा। बोले ये क्या है? बोले वृद्ध हो गए। ये क्या हो गया? ये ऐसा काम नहीं कर पा रहा। अब उनकी जिज्ञासा कहाँ आके टिक गई? उनकी जिज्ञासा कहाँ आके टिक गई? दुख क्या है? तो जब किसी का प्रश्न कहीं अटक जाता है तो आप उसको लाख सुविधा दे दीजिए, वो सुविधा के चक्कर में नहीं फंसता। जब बुद्ध का प्रश्न अटक गया तो बुद्ध अपनी नौजवान पत्नी और अपने 1 दिन के बेटे को छोड़ के निकल जाते हैं।
क्यों? क्योंकि उनका प्रश्न अटक गया था, जिज्ञासा अटक गई थी, समाधान नहीं हो रहा था। तो अभी हम क्या है, हमारा प्रश्न ही नहीं अटका है, हमको तो अभी प्रश्न अटकाने के लिए भी ध्यान दिलाना पड़ता है। देखिए आपका प्रश्न अटका है कि नहीं अटका है जी। तो ये 1 मिनट, तो ये जो भैया इसमें सही बात है, कुछ बच्चे बचपन से ही कुछ अजीब तरह के प्रश्न करते हैं। उसका मतलब क्या है कि उनका जीवन, शरीर तो छोटा है लेकिन जीवन किसी संस्कार परिमार्जन के साथ आया हुआ है। वो आगे का प्रश्न पूछ रहा है, अब आगे का समझना चाहता है। हाँ जी। श्रवण भाई, आपने बोला कि मैंने 2 बच्चों को मैं मिला हूँ और आपने कहा कि उसका वो बोलता है कि मैं वहाँ का हूँ, मेरे माँ बाप का वो नाम है। तो वो 2 या 1 बच्चे का आपने परमानेंट वो चेक किया कि वो सच में बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या कुछ ऐसी कोई घटना हुई है कि क्या है? हाँ देखिए, इसमें जो केस स्टडी होती है वो यही होती है कि आप जाते हैं, उससे मिलते हैं, दोनों परिवारों से मिलते हैं, तो जो वो बोला था वो सही था, ऐसा लोगों ने कहा। क्योंकि जब वो बोलना शुरू किया था तो मैं वहां नहीं था, आप भी वहां नहीं रहे होंगे। मतलब मैं भी बताऊंगा तो मैं बता ही रहा हूं, तो मैं वहां नहीं था, लोगों ने बताया। ये जब बोला था तो बिल्कुल सही बोला था, नाम पता सब सही बताया था, लेकिन बाद में फिर इसको विस्मृत हो गया, अब नहीं बोलता है। ऐसा उन्हीं लोगों ने बताया, अब ये नहीं बोलता, अब विस्मृत हो गया इसको। जैसे जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि क्या किसी शरीर को एक जीवन चला रहा है, क्या किसी समय उस जीवन को हटा के कोई दूसरा जीवन उस शरीर को चला सकता है? ऐसा आपने सुना है? प्रिया सुनी हो क्या? हाँ जी, माइक। चालू है। ऐसा एक प्रश्न आया था मैंने जब लास्ट परिचय शिविर किया तो, ये जो सब बोलते हैं ना, माता कोई आ गया, कोई आत्मा आ गई दूसरे शरीर में, ऐसा कुछ सब बोलते हैं। फिर वो कुछ बुआ हुआ होता है, वो आदनों में वो निकालता है, ये ऐसे ऐसे कुछ बातें करते हैं सब। आप में से किसी के सामने आई है घटना? नहीं आई है। अच्छा कल्पना करिए कि आप इस शरीर को बढ़िया से चला रहे हैं, खा पी रहे हैं, बढ़िया से जी रहे हैं, तो दूसरा जीवन इसको कैसे चलाए? मतलब एक जीवन को हटा के ही चलाएगा भाई। एक ड्राइविंग सीट पे एक ही ड्राइवर बैठेगा, एक समय में 2 ड्राइवर थोड़ी बैठेंगे। तो दूसरा ड्राइवर एक ड्राइवर को कब हटाएगा? दूसरा ड्राइवर एक ड्राइवर को कब हटाएगा? हाँ? क्यों उतर जाएगा? वो तो उतरेगा ही नहीं। इतना आसान है क्या उतरना? हेलो सर। हेलो। एक सुई चुभती है तो परेशान हो जाता है इस शरीर को लेकर के, वो इस शरीर को छोड़ेगा? हाँ जी। उसका मतलब यही हुआ ना कि ये बुआ हुआ कुछ कहाँ होता पर? नहीं है। हाँ, इसका मतलब यही हुआ कि ये बुआ हुआ कुछ होता नहीं है, और ये एक मानसिक डर होता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात में ऐसी प्रथा बहुत चलती है। सुना है कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भगवान को नहीं मानते, मीन की ऐसी अंधश्रद्धा में ज़्यादा विश्वास नहीं करते या पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी वो लोग समृद्ध और शायद खुश रहते हैं, ऐसा हमने सुना है। लेकिन यार हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी कुछ दुख होता है तो हम बुआ को बुलाते, वो दूरा धागा करवा देते, कुछ ऊपर से करके चला जाता है और ठीक हो जाता है। उसमें आप क्या कहते हैं सर, ये सही होता है या गलत होता है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ सर। अच्छा, हमको फंसाएंगे आप। ये बढ़िया तरीका है। तो भैया जो जीवन में चित्रण नाम की क्रिया होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है कभी कभी। जो भूत का, अन्य चीजों का जो हमारे में चित्रण बनाया जाता है बचपन से, तो मेरे में चित्रण होता है।
एक समय आता है कि मेरे में चित्रण इतना ताकतवर हो जाता है कि मुझे लगता है मैं ही भूत हूं, मुझे भूत ही लग गया है। ऐसा बहुत बार होता है। जैसे अभी वो रामपाल जी बोल रहे थे हापुड़ में कि उनके साले के साथ ऐसा हुआ कि बैठे बैठे रहता है और एकाएक वो कुछ अजीब हरकतें करना लगता है और वो अपने पिताजी इनका उनका सबका नाम लेने लगता है। तो भूत इतना ट्रेंड है कि अपने पिता का नाम जानता है। कुल मिला के क्या चीज है? ये कोई चित्रण ही है जो मेरे में, चित्रण को बोलते हैं मान्यता, मेरे में कुछ मान्यता बन गई है। अच्छा, हिंदू को जब भूत पकड़ता है तो हिंदू वाला पकड़ता है, मुस्लिम को पकड़ता है तो मुस्लिम वाला पकड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब जीवन अपनी ताकत को नहीं पहचानता, उसको लगता है संसार दुख ही है, दुख ही है, मेरे सुखी होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे करके जीवन एक अवसाद में चला जाता है, एक दुख में चला जाता है। ऐसी दुख की स्थिति में, अवसाद की स्थिति में उसको दुख ही दुख दिखाई देता है, दुख ही दुख दिखाई देता है। उसमें उसका जो व्यवहार हो जाता है कुछ अजीब सा हो जाता है। उसके अंदर जो कुछ भी चित्रण बैठे हुए हैं वो चित्रण निकल निकल के आने लगते हैं और वो कुछ बोलने लगता है। ज्यादातर ऐसा होता है। अगर कहीं 0.001% ऐसा कहते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि नहीं, दूसरा कोई पावर है जो इस शरीर को चलाने लगा था, आवाज बदल गई, कई चीजें हो गई, तो भी देखिए टेम्पररी ही होता है। जितने लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी, मैंने टीवी वगैरह में देखा जो वीडियो चला करके, तो उसमें वो बताते हैं कि इनके साथ थोड़ी देर होता है, उतनी देर में एबनॉर्मल हो जाते हैं, पसीना आएगा, प्यास आएगी, उल्टी सीधी चीजें, लेकिन धीरे धीरे फिर नॉर्मल होते हैं तो फिर गायब हो जाता है पसीना वगैरह। तो क्या चीज है? मैं इस शरीर, मैं दुखी होते 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 जीवन में इतना दुखी हो गया। भाई वही बता रहा था, ड्राइवर कब हटेगा? भाई जब ड्राइवर इतना कमजोर होगा कि आप धक्का मार सके उसको। लेकिन वन साइंटिफिक होता है, वो ज्यादा देर तक चलता नहीं है, ठीक है, उसकी संभावना बहुत ही कम है। ज्यादा संभावना यही है कि जो मेरे में चित्रण है, मैं अपनी घटना बताता हूं, रियल बताऊं। अभी जब मैं बड़ा हो गया था, बीएससी में पढ़ रहा था, तो मेरे पिताजी पुलिस में थे, वो बाहर रहते थे। फोन का कोई मतलब, घरों में फोन ऑन होता नहीं था उस जमाने में, 1993-94 में, मतलब किसी किसी के घर फोन बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, किसी किसी के घर होती थी। तो मेरे मामा जी के यहाँ एक झगड़ा हो गया पड़ोसी के साथ। झगड़ा इतना हुआ कि फरसे और भाले चल गए और मेरे मामा जी को भी फरसा और भाला लग गया पैर में यहाँ पर। तो जब थाने में गए तो उस थाने से ट्रंक कॉल होती थी, तो मेरे पिताजी जिस थाने में थे वहां से ट्रंक कॉल गई कि ऐसा ऐसा आपके ससुराल में हो गया है। तो पिताजी ने, मैं जहां गोरखपुर में रहता हूं वहां के थाने में ट्रंक कॉल किए कि मैं यहां पर हूं, मैं सब इंस्पेक्टर हूं और मेरा यहां घर है और मेरे ससुराल में कुछ हो गया, जरा जा करके मेरे घर बताइए कि वो मेरा बेटा होगा वो चला जाए थोड़ा। तो मैं चला गया, बीएससी फर्स्ट ईयर में था मैं। तो मुझे सूचना मिली, तो मेरा जब कॉलेज का टाइम हो गया उसके बाद गया। ठंडी का सीजन था, वो जनवरी का महीना था और बहुत ज्यादा कोहरा होता है हमारे तरफ ठंडियों में, मतलब इतनी दूर हिमांशु जी भी हमको दिखाई नहीं देंगे, इतना कोहरा होता है। तो खूब कोहरा हो गया था और रात में जो हमारे यहाँ जो ब्लॉक सेंटर है वहां से 2 किलोमीटर मेरा गांव है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही सब डिपेंड थे। तो क्या हुआ कि मैं पहुंच तो गया, लेकिन जहां ब्लॉक सेंटर था वहां से घर जाने का कोई साधन नहीं था और मोबाइल फोन तो था नहीं किसी को बुला ले। तो 2 रास्ते हमारे गांव में जाते थे। एक रास्ता ऐसे रोड से जाता है, ठीक, वो लगभग 2 किलोमीटर है। एक रास्ता ब्लॉक से ऐसे सीधा जाता है, बीच में एक नाला पड़ता है, एक बागीचा पड़ता है, उस नाले को पार करते हैं तो गांव में जल्दी पहुंच जाते हैं। तो हम सोचे क्यों लंबा रास्ता अपनाया जाए, छोटे रास्ते से चल देते हैं। लेकिन जब मैं बचपन में गांव में जब जाता था गर्मी की छुट्टियों में,
तो जब खेलने जाया करता था तो हमको ये बताया जाता था ये जो बगीचा है नदी के किनारे इसमें भूत है, और ये जो जामुन के पेड़ दोनों है इन्हीं पे है। अभी हमको बचपन से जितनी बार जाते थे उतनी बार बताया जाता था, जितनी बार जाते थे उतनी बार बताया जाता था, लेकिन हम कभी रात में उधर जाते ही नहीं थे। अब चूंकि बीएससी में चले गए थे, बीएससी कर रहे थे, थोड़े अपने को समझदार मान लिए थे, तो हमने रास्ता उस समय रात वाला ये वाला पकड़ लिया, उस रास्ते से बढ़ गए, और जैसे ही नाला पार किए वो बगीचा आया, मुझे बचपन का वो ध्यान आ गया। उसी समय संयोग से कोई खड़खड़ाहट हुई जामुन के पेड़ में, और मैं डरते हुए, मुझे पसीना, ठंडी के सीजन में शीतलहर थी, पसीना आ गया, और मैं बहुत तेजी से कदम बढ़ाते हुए घर पे गया। दादी जी बोली क्या हो गया, क्यों हाँफ रहे हो? हम कहीं इस रास्ते से आए। बोली क्यों उस रास्ते आए? अरे क्यों उस रास्ते आए? जानते हो उस बगीचे में है, तुमको कुछ पकड़ लिया। जबकि क्या हुआ था, मेरी जो मान्यता थी, मेरे में चित्रण था, उस चित्रण से ही मैं खुद डर गया था। मेरे में ही चित्रण था, मेरे में ही उसका भय आ गया, और मैं इसलिए मेरे अंदर से पसीना आ गया। देखने वाला क्या बोले, तुमको तो कुछ पकड़ लिया। दादी जी इतना परेशान हो गई, बोलती इसको झरवाओ, किसी को बुलवाओ, सोखा ओझा को बुलवाओ, नहीं इसको कुछ तो पकड़ लिया। क्योंकि हाथ हाथ कांप रहे थे हमारे। तो क्या चीज था? अब जब समीक्षा कर पाते हैं, जब मुझे कंटेंट मिला, जीवन नाम की कोई वास्तविकता पता चल पाई, तो मैं समीक्षा कर पाता हूं कि मेरे अंदर जो चित्रण था वो इतना स्ट्रांग हो चुका था, मेरी जो मान्यता थी इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी, उस मान्यता के कारण मेरे में ही भय आया, और उस भय से मैं पसीने में आ गया, घबराहट में आ गया, शरीर कांपने लगा, और कुछ नहीं था। तो ये मान्यता जो हम मान के बैठे हुए हैं, उसको हम जांचते भी नहीं, पड़ताल ही नहीं करते। तो बोले थे ना, हम अपनी गठरी लाद के चल रहे हैं, गठरी है उसको टांगे चल रहे हैं, उस गठरी को कभी खोल के देखते भी नहीं इसमें क्या ठीक है क्या खराब है, बस लादे चल रहे हैं। अब उसमें जो खराब है क्या होगा, वो सड़ेगा, सड़ेगा तो किसको बदबू आएगी? मुझे ही आनी है। क्यों आएगी? क्योंकि मैं जांच के देखा ही नहीं था। जैसे दिवाली की सफाई होती है, तो सबके घर में सफाई होती है, मेरे भी घर में होती है, होती थी, अभी भी होती है। तो जैसे कुछ कागज आया तो हमने कहीं खोस दिया, कुछ कागज पॉकेट में आया कहीं खोस दिया, कहीं अलमारी में से रख दिया, ऐसे कागज इतना सारा हो गया। तो श्रीमती जी जब दिवाली आता सब कागज इकट्ठा करके एक पॉलीथीन में लेके आती हैं, जरा एक कागज देख लीजिए, इसमें कोई काम लायक हो तो रखिए, नहीं तो फेंक दूं। तो हम क्या करते हैं, मतलब ज्यादा लोग करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मैं क्या करता था, अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये बेकार है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला बेकार है। तो बेकार वाला इधर, ठीक वाला इधर करते करते लास्ट में फिर सब मिला के इकट्ठे रख देते हैं, रख दो, हो सकता है ये भी कभी काम आ जाए। तो हम अभी अपनी जिंदगी में समीक्षा भी करते हैं, लेकिन उसको छोड़ते भी नहीं है, हो सकता है कभी काम आ जाए। क्यों? क्योंकि मेरे में जो मान्यता है वो बहुत गहरी बैठ गई है, मेरा चित्रण बहुत तगड़ा हो गया, ये मानता ही नहीं, मानता ही नहीं, मानता ही नहीं। तो दिल है कि मानता नहीं, चित्रण है कि मानता नहीं। मेरी इच्छा है कि मानती ही नहीं। तो आप देखेंगे ज्यादातर जो आप परेशान होते हैं अपने चित्रण के कारण, क्योंकि आपने जांचा ही नहीं है वो सही है कि नहीं है, सही है कि गलत है। सही, अरे वो कह रहे हैं तो सही होगा, ये कह रहे हैं तो सही होगा, किताब में लिखा है तो सही होगा, माँ बाप ने कहा तो कोई गलत थोड़ी बताया है। हम अपने अधिकार पे नहीं जांचते। तो जब तक हम अपने अधिकार पे नहीं जांचते तब तक मेरी चीज वो नहीं होती, मेरा उस पर विश्वास नहीं होता। अगर मैं जीवन को अपने अधिकार पे नहीं जांच पाया होता तो मैं इस सभा में इस जीवन के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो मैंने कम से कम जीवन क्रिया को अपने अधिकार पे जांचा है और जी के देखा है, जी के देखा है तो सही पाया है। और देखिए, जब जब कोई उपलब्धि हुई है बहुत खुशी हुई है। समझ की उपलब्धि जिस दिन होती है उस दिन बहुत खुशी होती है। जैसे हम लोग घर में अध्ययन करते हैं,
अभी दिल्ली में मैं हूं, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, तो शाम को घंटा 2 घंटा कोई अध्ययन करते हैं किसी टॉपिक को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि विश्लेषण का ही अध्ययन कर रहे हैं, या किसी मूल्य का अध्ययन कर रहे हैं, सम्मान का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम लोग सम्मान पे पता चला 15-20 दिन अध्ययन कर रहे हैं, अलग अलग एंगल से सम्मान को देख रहे हैं, अपने अंदर सम्मान को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। किसी दिन अगर किसी को सम्मान पहचान में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं उस दिन? हमारे लिए वो दिन उत्सव का दिन होता है और हम उस दिन जरूर खीर बना के खाते हैं। आदमी को समझ आ जाए, एक समझ जिस दिन आई वो उस दिन उसके जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। दिवाली पे उत्सव मनाइए ना मनाइए, उस दिन जरूर मनाइए जिस दिन आपको कोई समझ आई है। हम जन्मदिन कैसे मनाते हैं? मैं जन्मदिन कैसे मनाता हूं बच्चों का? तो आज जन्मदिन है तो गुब्बारा भी फोड़ते हैं, केक भी काटते हैं, सब करते हैं, बच्चे भी आते हैं, खाते हैं, पीते हैं। उसके बाद क्या करते हैं भाई? लोगों को ये ना लगे नास्तिक हो गया है तो कोई और धारा में चला गया है तो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं। अभी क्या है अभी क्या है, हम उल्टा चल रहे हैं, शीर्षासन में चल रहे हैं। तो जैसे ही सीधा करिए तो लोगों को लगता है अरे तो उल्टा कर दिया हमको। तो वो सारा करने के बाद क्या करते हैं? तो पिछले जन्मदिन पे हमने कुछ लक्ष्य लिया था कि ज्ञान के अर्थ में इस 1 साल में हम आगे कहां पहुंचना चाहते हैं, पहुंचने वाले हैं। इस जन्मदिन पे पीछे की 1 साल की यात्रा की समीक्षा करते हैं। हमने ज्ञान के अर्थ में कोई लापरवाही तो नहीं की, समझ के अर्थ में कोई समय को खराब तो नहीं किया, समझ के अर्थ में अपने समय को कितना लगाया कि नहीं लगाया, और उसी समय अगले जन्मदिन के बीच में, इस जन्मदिन से अगले जन्मदिन के बीच में लक्ष्य का निर्धारण करके बढ़िया से उत्सव मनाते हैं। हाँ जी, मेरी बात का जवाब नहीं मिला सर। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कर रहा था कि भूत प्रेत जैसी बातें होती है कि नहीं। हाँ आप हमसे क्या? मैं एक बात, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपने कहानी की, मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मैंने रियल देखी है। क्यों ना कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं बातों में मानता नहीं कि भूत प्रेत नहीं होता। तो मेरी नई शादी हुई, जो मेरी बीवी थी उनकी छोटी बहन की भी शादी हो गई थी, मेरी साले की। तो उनको अचानक ऐसा हो रहा था कि वो बाइक फुल स्पीड में जा रही होती, तो उनके शरीर में अचानक से कंपन आ जाती और वो फुल स्पीड में गाड़ी होती, फिर भी वो बाइक से कूदकर नीचे गिर जाती। और ऐसा उसने 2-3 बार किया, कई बार तो हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया। और जब उसे कंपन शुरू हो जाती तब उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता। बड़े बड़े आदमी भी उसे पकड़ रहे थे तो उनको भी वो फेंक देती दूर। तो लोग टेंशन में आ गए कि चलो ये क्या है, ऐसा क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई डॉक्टर को दिखा देते। तो हमें डॉक्टर को बताया, जो मन का डॉक्टर होता है ना, उनको दिखाया हमने, साइकेट्रिक। हाँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है रिपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा सोचते हो, ऐसा बताया उसने। ओके, तो फिर मैंने उनको बताया कि आपको सोचना कम, आपको ज़्यादा नहीं सोचने का। फिर भी 5-10 दिन वो वैसा ही रहा, नॉर्मली हो गया। लेकिन फिर पाछा वैसा ही होने लगा कि वो बाइक पे जा रहे थे और उनका वो है ना, शुरू बाइक पे गिर जाती और फिर उनका पैर टूट गया, हाथ टूट गया। और फिर तो अब तो मुसीबत बड़ी हो गई कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो फिर एक बुआ बुलाया, बुआ जो आता है ना, हाँ, सोखा हो जा झाड़ वाले, उसने आया और उसने कुछ जादू किया, कुछ जो भी किया, उसने दोरा धागा किया, बांध दिया और वो ठीक हो गए। और आज उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह से चल रही है, उनको फिर वो प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। तो ऐसा क्या सर है? बढ़िया, बताइए आप में से क्या निष्कर्ष निकलता है इससे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, हाँ, क्योंकि मैं मानता तो नहीं था, लेकिन ऐसा होकर मेरे मन में भी अब शंका पैदा हो गई, कंफ्यूजन है कि होता है या नहीं होता। हाँ भैया, इसमें जितनी भी बात करेंगे ना, ये मान्यता से ही जुड़ा है, ये मान्यता से ही जुड़ा मामला है। हाँ जी, आप बोल दीजिए फिर। अभी जो बोला ना, तो इसमें એટલે આમાં એવું હોઈ શકે, ગુજરાતીમાં જસ્ટ બોલવાનું ટ્રાય કરું છું કે ઇવન તમે આ ઇન્સિડન્ટ શેર કર્યો ને, તો આ ચિત્રણ હવે આજે જે 250 કે 300 લોકો બેઠા છે ને, એમના મગજમાં આ ચિત્ર જતું રહ્યું છે. એમને ખબર નથી કે આ ચિત્ર મારા મગજમાં છે કે એવું વસ્તુ.
એટલે આ હવે ચિત્ર ગયું છે ને, એટલે એ જે અંકલનું કહેવું હતું કે શ્રવણ અંકલનું કે ભાઈ હવે આ ક્યારે બહાર આવશે, તો એ એક વખતે જ્યારે પણ આવો ઇન્સિડન્સ આવે ને એક વખત મગજમાં બેસી ગયું ને, તમે આપણે પ્રશ્ન અને સોલ્યુશન બંનેનું ચિત્રણ અત્યારે મગજમાં જતું રહ્યું છે. શું ગયું છે કે ભાઈ આવું મારા મગજમાં શું કહેવાય, કોઈ વખત હું બાઇક ઉપર જતો હોય ને આવું થાય એટલે આ રીતે થઈ જાય, અને આનું સોલ્યુશન ભૂવો જ કરી શકે. એનું સોલ્યુશન પણ મારા મગજમાં આજ અત્યારે આવી ગયું છે અને એનું ચિત્રણ પણ મારા મગજમાં આવી ગયું છે. એટલે આમાંથી અથવા આ માણસ કદાચ કોઈ બીજાને વાત કરશે, ત્રીજી વ્યક્તિને વાત કરશે, આ રીતે ચિત્રણ પ્રશ્ન અને એના સોલ્યુશન સાથે અંદર જતું રહેતું હોય છે. આવું આ મારી માન્યતા છે, અથવા હું એવું સમજું છું મારી સમજ પ્રમાણે. અને એટલે જ પછી જ્યારે પણ એ રિઝલ્ટ આવતું હોય તો ત્યારે એ વસ્તુ એનું શું કહેવાય, જ્યારે પણ એને ભૂવો બોલાવો તો એનું પરમેનન્ટ સોલ્યુશન થઈ જાય છે. કારણ કે એના મગજમાં એ જે ચિત્ર પડ્યું હતું કે આવો મારે સાથે જ્યારે પણ પ્રોબ્લેમ થાય તો એ ભૂવા નામની વ્યક્તિ મારી સામે આવે અને આવું કંઈક કરે તો જ એ વસ્તુનું સોલ્યુશન થાય છે. એટલે એને પછી એ સોલ્યુશન એના માટે એકદમ પરફેક્ટ થઈ જાય છે. જેમ बहुत अच्छा. એટલે આવું એક નોર્મલી થતું હોય છે. એટલે જ કદાચ આવો ઇન્સિડન્સ અમેરિકામાં નથી બનતો જ્યાં સુધી આવી વાત અમેરિકામાં નહીં પહોંચે. જે દિવસ અમેરિકામાં આવી વાત પહોંચી અને બધાના મગજમાં ચિત્રમાં આવું જતું જાય, ક્યાંક ડરના કારણે એવું થશે તો એ અમેરિકામાં એ 100% આજે નહીં તો કાલે થશે. આવું એક મારું માનવું અથવા સમજવું છે. बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, इसमें क्या है भैया, वो भैया ने जो कहा वो मैं थोड़ा थोड़ा समझ लिया. हाँ जी, मैं थोड़ा हाँ हेलो. हाँ, आपने कहा मान्यता, उन भैया ने जो कहा ना मान्यता की अभी बात हम साइड में रख देते हैं. ये बच्चा है तो उसमें शक्ति आई कहाँ से? कौन सी शक्ति? उन्होंने क्या कहा कि वो जब ऐसा होता था उनके कंपन वंपन आती थी तो वो बड़े बड़े आदमियों को भी फेंक देती थी. तो वो शक्ति कहाँ से फेंक देती मतलब ऐसे उठा नहीं लेती थी, झटक देती थी. क्यों ऐसे उठा लेती थी क्या? भाई समझो थोड़ा. अभी तक इतने जितने भी इंसिडेंट्स हुए उसमें कभी ऐसा इंसिडेंस देखा कि उसने एक कार उठाई एक हाथ में और ऐसे फेंक दिया? नहीं नहीं, आदमी को भी नहीं उठाया. हाँ? उनका कहने का तो ऐसे था. एक्चुअली हमारे में अंदर ताकत रहती है. जैसे कि नॉर्मली हम दोनों फाइट करते हैं तो नॉर्मल फाइट होती है तो नॉर्मल हम एक दूसरे की ताकत से एक दूसरे को धक्का देने या उससे करते हैं. लेकिन अगर जब जान की बात आ जाती है कि भाई अभी आपके पीछे सी पड़ गया तो जो या ऐसा कुछ होता है तो जो नॉर्मली कभी नॉर्मल में कभी आप में जितनी भी ताकत नहीं होगी उससे भी ज्यादा ताकत उस टाइम पे आ जाती है. तो ऐसा भी हो सकता है कि बोनी भाई ताकत रहती है. हाँ, वो जय भाई की बात से मैं सहमत हूँ. हाँ. कि उस लड़की की बात कर रहा हूँ तो वो एक सामान्य से आदमी के साथ लड़ने की भी ताकत नहीं होती, तो इतनी ताकत कहाँ से आती है? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि जो ताकत है तो नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं, ये हमारी मान्यता है कि लड़की में ताकत नहीं होती. वो हमारी मान्यता है कि लड़की में ताकत नहीं होती. लड़की में भी ताकत होती है लेकिन उसको प्रदर्शन और उसकी जरूरत नॉर्मली नहीं रहती, इसलिए उस शक्ति का प्रयोजन वो करती नहीं है. लेकिन जब ऐसा सिनारियो आपके सामने आता है तो उसके अंदर जो ताकत और शक्ति है उस टाइम पे वो बाहर निकल सकती है और वो आ सकती है. इसीलिए अभी ऐसे जितने भी इंसिडेंट्स मैंने भी सुने हैं, क्योंकि ऐसी बात डेफिनेटली सबके साथ होती है तो मैंने भी सुना है, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा इंसिडेंस नहीं सुना है कि जो एक ह्यूमन कोई भी हिसाब से नहीं कर सकता, ऐसा इंसिडेंस अभी तक मैं नहीं सुना. जो ताकत की बात सुनिए तो वो आदमी को गिरा देगी या ऐसे वो क्या बेड से ऊंची उठ जाएगी और बहुत ताकत करती है, ऐसा सब कुछ ही सुना है. लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना कि उसने 2 दीवार तोड़ दी, उसने ऐसा कुछ तोड़ के बाहर निकल गई, ऐसा अभी तक मैंने कभी सुना नहीं है और ऐसा हुआ नहीं है. तो आई थिंक वही कुछ एक जांचने की उसमें. हाँ ठीक है. तो इसमें जो है ताकत की बात जो है भैया वो सही बात है कि आपके ताकत कितनी है उसका अंदाजा इमरजेंसी में आता है. आपके पास किसी महिला पुरुष के पास ताकत कम नहीं है, ताकत ज्यादा ही है, लेकिन वो पूरा यूज करने की जरूरत ही नहीं है. इमरजेंसी में वो पता चलता. आप भीड़ में कहीं फंसे हुए हैं, कहीं भीड़ में आप फंसे हुए हैं, आप देखिए एक सामान्य आदमी ऐसा धक्का मारता है कि 3-4 लोग गिर जाते हैं. अच्छा, फिर सामने वाला आदमी उतना तैयार भी नहीं है कि इतना ताकत लगाएगा, इसलिए भी वो गिर जाता है.
ठीक है, तो ये अच्छी बात है। आप जो कह रहे हो इतना तो ताकत रहती है, पहली चीज। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, एक्चुअली वो मान्यता ही है कि जब एक मान्यता घर कर लेती है कि ये सोखा ओझा से ही ठीक होगा, तो फिर वो सोखा ओझा से ही ठीक होता है, क्योंकि है तो मानसिक स्थिति ही। डॉक्टर ने कहा ये बहुत सोचते हैं, तो सोचना बंद थोड़ी कर पाएंगे आप भाई। तो डॉक्टर क्या करेगा, कोई दवाई देगा, वो दवाई से सो जाएंगे। जब तक सोए रहेंगे तब तक ठीक है, जगेगा फिर वही आ जाएगा। तो हमको लगा कि देखो फिर भूत आ गया। तो डॉक्टर का क्या है, वो मान्यता को डॉक्टर खत्म नहीं कर सकता। इसका इलाज भी करते हैं डॉक्टर, तो उसको बताते हैं 2-3 साल लगता है, क्योंकि जो नर्व्स है ना, नर्वस सिस्टम है, मतलब जो ब्रेन चैनल है, उसका रिपेयरिंग सिस्टम बहुत स्लो है। जो साइकेट्रिक बताते हैं कि आज जो दवा देते हैं उस दवा का असर 28 से 30 दिन बाद आना शुरू होता है, ऐसा साइकेट्रिक बताते हैं। ठीक है, हमको क्या लगा डॉक्टर दवा दे रहे हैं, 15 दिन हो गया फायदा नहीं कर रहा है, सोखा को बुलाओ, ओझा को बुलाओ। और एक मान्यता भी है कि सोखा ओझा ठीक कर देगा। तो कुल मिला के वो मानसिक स्थिति ही है, चित्रण ही है। वो मान्यता ही इतनी दृढ़ हुई होती है ना कि मुझे कोई भूआ कोई आएगा तो ही अच्छा करेगा, और उसके लिए भी ये टूल लोग यूज करते हैं। हाँ, और जिन क्षेत्रों में मान्यता नहीं है, भाई गुजरात में गुजराती भूत पकड़ता है, यूपी में यूपी वाला भूत पकड़ता है। गुजरात वाला भूत यूपी में क्यों नहीं जाता? हाँ, वो गुजराती में ही बोलेगा, वहां वाला हिंदी बोलेगा। तो कुल मिला के क्या है, ये सारा का सारा एक मानसिक स्थिति। जहां ऐसी मान्यता नहीं है, जैसे इन्होंने बताया यूएस में ऐसी मान्यता नहीं है, यानी उनके संस्कार में ही नहीं है, उनका कोई इसका चित्रण ही नहीं है, वहां नहीं आता है। तो मामला चित्रण का है, इसको और जांचा जाए। सर, काला जादू या हिप्नोटाइजिंग जैसी कोई चीज होती है? हिप्नोटाइज्म जो है वो क्या चीज होता है कि आपकी जीवन क्रियाओं में, जीवन क्रियाओं को, जैसे चित्रण को, हिप्नोटिज्म क्या होता है? हेलो सर, आपने अभी कहा कि यूएस या मतलब कि ऐसा सब भूत भूत वाली बात रह घटनाएं गई। हाँ। भारत में ही होती है, क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं? मतलब हाँ, तो आप अभी 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 गूगल करिए, जापान में डॉल्स आइलैंड करके एक है, आप देख सकते हैं। और अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे हाउसेस है जो सरकार ही, गवर्नमेंट ही कह देती है कि भाई यहाँ रात को मत रुकना। सही बात है। भाई चित्रण बना दिया तो क्या करेंगे? अब सरकार ही चित्रण बना रही है। आपने क्या बोला कि यूएस, वहां बाहर, वहां ऐसी मान्यता कहाँ भाई होती है? सुनो सुनो सुनो, हाँ जी, आप अभी 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 आप क्या? अरे ऐसे समाधान नहीं निकलेगा। देखो नहीं नहीं मेरे सर, मेरे 2 मिनट मैं क्या कहता हूँ, आप कह दीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, भैया हमसे क्यों स्टेटमेंट लेना चाहते हैं? क्योंकि बाप आप अच्छी तरह से जानते भाई हैं। मैं इसीलिए। साइकेट्रिक नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं कोई मतलब मुझसे क्यों आप कंक्लूजन लेना चाहते हैं? नहीं, हाँ, एक मिनट। मेरे पिताजी के साथ एक घटना हुआ, सुनो, जो कह रहे हो ऐसे हाउसेज हैं जिसमें जाने को मना करते हैं। मेरे पिताजी के साथ एक घटना हुआ, अब वो पिताजी कभी आएंगे तो पिताजी बताएंगे, लेकिन जो उन्होंने बताया कि एक जगह वो थाने में पोस्टिंग थी, तो एक घर था, उसको लोग भूतहा घर बोलते थे, भूत वाला घर, तो कोई नहीं जाता था। पिताजी बोले मैं जाऊंगा, उसमें गए, पूरी रात रहे, चले आए, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा गया, फिर बोला हो रहा है, फिर गए, फिर पूरी रात गए, कुछ नहीं हुआ। बाद में पता चला उस घर के अंदर गैर कानूनी काम होते थे, इसलिए ऐसा मान्यता बना के रखा था उधर मत जाओ, अवैध शराब वहां निकाला जाता था, इसलिए ऐसा तो देखिए उसके पीछे क्या उद्देश्य है हमको पता नहीं है। क्यों जाने को मना किया जा रहा है पता नहीं है, क्यों चित्रण और बनाया जा रहा है पता नहीं है। चित्रण ही बनाया जा रहा है ना, कुल मिला के चित्रण ही बनाया जा रहा है। चलिए, अगर भूत होंगे तो निपटेंगे। हाँ जी, માન્યતા આધારિત જે વાત થઈ ને એના માટે એક એક્ઝામ્પલ આપું.
જ્યારે પણ આવું કંઈ હોય ભૂવાની જરૂર પડે ને ભૂત આવે ને એવું કંઈ હોય એટલે એવા વ્યક્તિને એવું કહેવાનું કે આ એક વ્યક્તિ છે બહુ મોટા ભૂવા છે. રિયલમાં સામાન્ય માણસને ભૂવા બનાવી દેવાના અને એ જે વ્યક્તિ છે પીડિત છે એને એવું સમજાવવાનું કે આ વ્યક્તિ બહુ મોટા ભૂવા છે, એમણે બહુ મોટા મોટા કામ કર્યા છે, બહુ મોટા માતાજીના ભૂવા છે અને આટલા વર્ષનો અનુભવ છે. આવી રીતે ખોટી વાર્તા એ વ્યક્તિને સમજાવવાની, કહેવાની. એટલે એ માની લેશે કે આ ભૂવા છે અને આમનાથી કામ થઈ જશે. આને પ્લેસિબો ઇફેક્ટ કહેવાય. એટલે એ વ્યક્તિ માને એટલે કામ થાય છે. રિયલમાં એ ભૂવા નથી છતાં એમનાથી કામ થઈ ગયું. એટલે આવું કરશો તો તમને લાગશે કે એ થઈ જાય છે. એટલે માનવામાં આવે એ થાય. बहुत बढ़िया. और अगर भूत प्रेत में भैया ताकत रहती तो सब भूत प्रेत ही पाल के रखते घर में. और क्या, अगर वो ज्यादा ताकतवर हैं तो उन्हीं को पाल के रखें. सारे आप अपने कंपनी में भूत प्रेत को लगाइए, ज्यादा आउटपुट आएगा. क्यों आदमी लगाएंगे? बॉर्डर पे भी भूत प्रेत ही रखते. तो आपको जांचना पड़ेगा भैया कि बहुत सारे ये सारे चित्रण हैं, चित्रण बनाए जाते हैं या अपने से बन जाते हैं, फिर वो मान्यता के रूप में स्थापित हो जाते हैं, वो आगे बढ़ता रहता है. कुल मिलाकर के देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं अपवाद की कर रहे हैं. हमको अपनी जिंदगी में 44 साल की उम्र में कभी भूत से भेंट नहीं हुआ. 43 इयर्स की एज में मेरा अपना भूत से भेंट नहीं हुआ. कोई कहा होगा मुझे भूत लगा, वो अलग बात है, लेकिन मेरा तो भेंट नहीं हुआ. किस भूत से? उस वाले भूत से. लेकिन जिंदा भूतों से रोज भेंट हुआ. हेलो. हाँ जी. जो भूत वाला किस्सा है वो ऐसे तो मन की बातें, जो मन में जो एक्सेप्टेंस लेवल होता है उस पर निर्भर रहती है. जो मानता है उसको भूत नहीं है वो कहेंगे, फिर भी वो मानेगा ही. बस. और जो नहीं मानता उसको कोई भी भूत बताए तो भी उसको कुछ भी नहीं करने वाला. और जनरली वो भूत वाला किस्सा है, आप इट इज़ द साइकोमेट्रिक डिसऑर्डर, इसको सिजोफ्रेनिया कहते हैं. बस ऐसे बहुत सारे नाम हैं. आप गूगल में जाके सिजोफ्रेनिया सर्च करिए तो उसमें कई बार कई लोग हंसते हैं, कई लोग रड़ते हैं, कई लोग आक्रामक होके कोई गुस्सा करते हैं. ऐसे सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी है, वो साइकोलॉजिकल है. तो वही भी आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या है. मैंने भी ऐसे कई केस स्टडी किए हैं और उसमें मुझे तो ऐसा भूत जैसा लगा नहीं है. वो मेरे पास उसके एक्चुअली मैंने ऑब्जर्वेशन भी किए हैं. तो बहुत और अच्छा. मेरे गांव में कई बार ऐसा होता है तो मेरे फ्रेंड लोग मुझे बुलाते हैं कि आप नहीं मानते हैं तो चलो मैं भूत दिखाता हूँ. उसको किसी को होता है तो मैं जाता हूँ और ऐसा कुछ होता ही नहीं. तो बहुत अच्छा, आप निष्कर्ष खुद निकालिएगा. लेकिन मेरा जो स्टेटमेंट है वो ये है, इस धरती को ऐसे भूतों ने बर्बाद नहीं किया है. इस धरती को जिंदा भूतों ने बर्बाद किया है, पढ़े लिखे भूतों ने बर्बाद किया है, जिनके पास डिग्रियां उन्होंने बर्बाद किया है. उनकी चर्चा की जाए. जिन्होंने इसमें अव्यवस्था में कोई योगदान नहीं किया है उन पे हम इतनी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं. सर मेरा उत्तर नहीं मिला. हाँ, हिप्नोटाइजिंग वाला. देखिए, हिप्नोटिज्म को तो साइकोलॉजिस्ट स्वीकार करते हैं कि हिप्नोटाइज करते हैं. हिप्नोटिज्म क्या है? तो जो थॉर्नडाइक का प्रयोग है ना, हाँ, जो आप देखेंगे साइकोलॉजी में थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया है कि एक कबूतर है या एक बंदर है, उसको खाना देता है. तो एक बार क्या खाना देता है? खाना रख दिया, वो वहाँ नहीं आता है. एक बार खाना रख दिया, वहाँ पहुँचा, जैसे ही खाने के पास पहुँचा तुरंत एक बटन दबाया. फिर अगली बार भी जैसे ही बटन दबाया तुरंत तो खाने के पास आ गया. फिर अगली बार बटन दबाया, फिर तुरंत तो खाने के पास आ गया. अगली बार क्या हुआ? वो खाना जैसे ही ले गया तुरंत तो आ गया. ये क्या कर रहे हैं? एक कंडीशनिंग इसको बोलते हैं, कंडीशनड कर रहे हैं. तो हिप्नोटिज्म में क्या होता है कि आपको कोई कंडीशनड करते हैं. कंडीशनड का मतलब ये हुआ कि कोई मान्यता आप में डालते हैं, इसी को कंडीशनिंग बोलते हैं, चित्रण को ही.
तो चित्रण ही कोई बिठाते हैं, आपको कंडीशनड करते हैं, उसमें कोई ट्रिगर देते हैं और आप उछल जाते हैं। तो ऐसा होता है, हिप्नोटिज्म करते हैं, वो कोई अच्छा काम नहीं है। हाँ जी, क्योंकि देखिए कोई काम अच्छा है बुरा है, उसका ढांचा खांचा यही है, क्या उससे कोई व्यवस्था बनी, क्या उससे मानव सुखी हुआ, क्या उससे परिवार में संतुलन पूर्वक जी पाया, क्या उससे समाज में भय खत्म हुआ, क्या प्रकृति संतुलित हुई, यही ढांचा है। क्या मानव तनाव मुक्त हुआ, क्या परिवार क्लेश मुक्त हुआ, क्या समाज भय मुक्त हुआ, क्या प्रकृति संतुलित हुई, यही सांचा है। तो हिप्नोटिज्म है कि नहीं है? अगर हिप्नोटिज्म है तो कंडीशनिंग ही है, चित्रण ही है, लेकिन मानव के लिए कोई उपयोगी चीज नहीं है वो। पर मैंने देखा है तो जितने भी एग्जाम्पल हुए होंगे तो कोई हिप्नोटाइज करता है, जैसे मैं आपको करूँगा तो मैंने आपको हिप्नोटाइज किया तो मैंने आपके ऊपर पूरा नियंत्रण पा लिया है कि मैं उससे- जो कहूँगा वो ही आप करेंगे। उससे आप ऐसा क्या, कैसे? उससे आपको क्या फायदा होगा? फायदा कुछ नहीं, पर वो कर सकते हैं, उससे फायदा क्या होगा आपको? कुछ नहीं होगा, तो फिर उसकी चर्चा क्यों इतना किया जाए? पर समझने के लिए। तो भैया हिप्नोटिज्म कर सकते हैं, वही है ट्रिगर। ट्रिगर ये हुआ कि इस जीवन को, मेरा जीवन इतना कमजोर है, मैं अविश्वास से भरा हुआ हूं, मैं अविश्वास से भरा हुआ हूं, अर्थात मेरे जीवन में अविश्वास है, जीवन में ही अविश्वास होता है, तो ऐसे अविश्वास से भरा हुआ होता हूं तो मुझे कोई भी चलाएगा, ट्रिगर दबाए ना दबाए, हिप्नोटिज्म कराए ना कराए। मैं अगर आहार निद्रा भय प्रजनन, मैं अगर आहार निद्रा भय प्रजनन में ही डूबा हुआ हूं तो ये भी हिप्नोटिज्म ही है। मैंने सुविधा को सुख मान लिया है और उसमें लगा हुआ हूं, सुख नहीं मिल रहा है फिर भी लगा हुआ हूं, सुख नहीं मिल रहा है फिर भी लगा हुआ, ये हिप्नोटिज्म ही है। वैसे हिप्नोटिज्म सबको नहीं होता है। हमको सबको तो नहीं नहीं कर होगा, सकता। हमको करके देखो हमें नहीं होगा। હેલો જો મને મારા ખુદના ઉપર વિશ્વાસ નહીં હોય ને તો જ હિપ્નોટિઝમ લાગશે. એ મારો ખુદનો અનુભવ કરું. હું 10મા ધોરણમાં ભણતો હતો ત્યારે અમારા ત્યાં હિપ્નોટિઝમની એક કોઈ આર્થિક સંસ્થા આવી હતી ને આવું બધું કરાવતી હતી. 4 વાર ટ્રાયલ થયો તો મને હિપ્નોટિઝમ નહોતું લાગ્યું. भाई सही बात है, आप विश्वास से भरे हुए जी रहे हैं, आपको कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। आप में विश्वास की जो अधूरापन है, आप में जो समझ का अधूरापन है, आप में जो सम्मान का अधूरापन है, उस अधूरेपन को ही उठिलाए। जी હેલો ગુજરાતની પ્રજા કદાચ બીજા બી પ્રજા હશે કે જે ભૂવામાં માનતી હશે, કદાચ ઘણા એવા હશે કે માનતા બી હશે પણ કહેતા બી નહીં હોય. આજે હું એ બાબતે ક્લેરિફિકેશન કરવા માગું છું કે કોઈ ગુજરાતમાં કે ઇન્ડિયામાં કે વર્લ્ડમાં કોઈ એવો ભૂવો છે કે જે બધાના દુઃખ દૂર કરી શકે? તો હું માનું કે હા એ ભૂવો છે, કે એ સાચું કરે છે, કે એ સારું કરે છે. છે કોઈ? बढ़िया। છે કોઈ? ડૉક્ટર બી એવું છે, ડૉક્ટર બી પોતાની માન્યતા, પોતાના શક્તિ પ્રમાણે દવાનું દવા આપે છે. તમને દવા આપે છે એનો મતલબ એવો નથી કે તમે એકદમ ઓકે થઈ જશો. ડૉક્ટર બી તમારા ઉપર ટ્રાય જ કરે છે. ઘણી વખતે હું જોઉં છું કે ડૉક્ટરના ત્યાં જ ગયા હોય ને તો તમે જોજો ઘણી વખતે કે એવો ટાઈમ હોય બપોરનો કે સાંજનો કે ત્યાં એમઆર આવતા હોય, મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. તો હું જોઉં અથવા તમે બી જોજો કે ડૉક્ટર અને એમઆર જે વાતચીત કરતા હોય, ડિસ્કશન કરતા હોય, એના ઉપરથી ઘણી વખતે એવું લાગે કે ડૉક્ટર નથી, એમઆર ડૉક્ટર છે. આવું ઘણી વખત મને ફીલ થયેલું છે કે ડૉક્ટરને એમઆર સમજાવે છે કે આ દવા આ કામ કરશે, આ દવા આ કામ કરશે, એટલે તમે આ દવા આપો. તો શું થયું? આ પછી એ ટ્રાય કરે છે, ડૉક્ટર એ ટ્રાય કરે છે એ દવાઓનો કે આ દવા આના માટે ઓકે છે કે નથી, કે આ ના, એટલે મીન્સ એ બી ટ્રાય જ છે. આ મારી માન્યતા છે, હું એવું નથી કહેતો કે આ સત્ય છે, પણ ડૉક્ટર અને ભૂવામાં આ બંનેમાં આટલું મને ક્લેરિફિકેશન છે એટલે મેં તમને કહ્યું. માનવું ના માનવું એ તમારી માન્યતા છે. बस ठीक है, बढ़िया, हेलो बहुत अच्छा। हाँ जी, अब भूत प्रेत की बात नहीं करेंगे, चलिए पहले हम लोग सूरत में फैक्ट्री में तो एक टेबल पे 10 आदमी, बैटरी उसकी चली गई है। नवरात्रि का समय था हम्म, तो और नवरात्रि का जो
माता जी का गरबा बजा ना, जो में एक भाई बैठा था वो अचानक वाइब्रेट हो गया। हेलो। हाँ। तो अचानक वो वाइब्रेट होने लगा, तो आजू बाजू में मैं देखने लगा ये क्या कर रहा है, तो सामने 2-4 आदमी बोला कि आरती की थाली लाओ यार। ये तो यार सुकून की बात है कि यार नवरात्रि है, अभी माता जी का वो समय चल रहा है, तो ये साक्षात शायद हमारे यार ऑफिस में कृपा हुई है। तो थोड़ी देर तो मैं तो घबरा गया, यार ये सही है कि या तो बाजू में से एक भाई कोई एजुकेट था, वो पढ़ा लिखा था, बोलता था इसको दवाखाने ले जाओ, ये तो बीमार है। तो मैंने सोचा कि इसमें ये सही है कि यही सही है। तो चला, उसने मैं बोला कि तुम भाई आरती भी उतारो, बाद में उसके साथ मैं अस्पताल भी जाता हूँ। तो हम लोग वो साइकेट्रिस्ट के पास गए थे, तो वो डॉक्टर ने क्या बताया, इम्प्रेशन डिसीज बताया उसको कि एक प्रकार की मानसिक उसकी वो स्थिति होती है कि उसमें वो किसी वो भजन सुन लेता है माता जी का, तो उसके अंदर जो उसके जो चेता तंत्र में जो वो आधा होता है ना, वो चित्रण ही है। हाँ, एक चित्रण बना हुआ है। देखिए, जीवन क्रिया में लाएंगे तो कहां लाएंगे, वो एक चित्रण बना हुआ है। ये चित्रण आपको ड्राइव करता है। देखिए, शरीर को जीवन जलाता है और जीवन को चित्रण ड्राइव करता है। इच्छाएं मतलब मेरा चित्रण मुझे चलाता है। अब मेरे चित्रण में क्या है वो आपको जांचना पड़ेगा। अगर चित्रण सही नहीं हुआ, अब कल इस पे चर्चा करेंगे सही चित्रण कैसे होता है। जब तक चित्रण सही नहीं होगा तब तक हम पूरे दिन इसकी चर्चा करेंगे, कुछ नहीं होने वाला और उससे कोई समाधान भी नहीं होने वाला। बाद में मैंने उसको बोला कि अब की बार तू ऐसा मत करना वरना तेरी शादी नहीं होगी। तो उसके बाद वो मेरे साथ 5-6 साल रहा, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। देखिए, बढ़िया। चलिए, तो आज की चर्चा रही, शुरू से हमने जो बात किया, हाँ जी, शुरू से हमने जो बात किया कि मानव सुखी होना चाहता है तो उसको, हाँ जी, सुखी होना चाहता है। तो कल यहाँ चर्चा आई थी, क्या, क्यों और कैसे का उत्तर पाना चाहता है, इसी को समाधान बोला। समाधान से सुखी होना चाहता है, तो हमने कहा समाधान क्या है, तो स्वयं में व्यवस्था को समझना, परिवार में व्यवस्था को समझना, समाज में, प्रकृति में, अस्तित्व में व्यवस्था को समझना, यही 4 स्तर हैं। इनमें व्यवस्था को समझते हैं, जीते हैं, उसी को समाधान बोला। उसमें आज हमने शुरू किया स्वयं में व्यवस्था को समझना, और उसमें हमने देखा कि मानव केवल शरीर नहीं है। हमने यहाँ जांच के देखा, आवश्यकताओं के रूप में देखा। आवश्यकताओं के रूप में देखा, 2 तरह की आवश्यकताएं हैं। जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं, तो इसकी सीमित है, इसकी असीमित है, इसकी निरंतर है, इसकी सामयिक है। ऐसे करके हमने जांच के देखा क्लियरली कि मानव केवल शरीर नहीं है, तो शरीर के अलग कुछ ही है। अलग क्या है, तो मैं हूं। मैं को एक नाम दिया, जीवन। जीवन को क्या कहा जाए, तो जीवन कैसे चलता है, शरीर को कैसे चलाता है, उसकी बात हुआ। अब हम शाम के सत्र में जीवन को समझने की कोशिश किए हैं कि जीवन जो हम बोल रहे हैं तो कोई रहस्य नहीं है, वो क्रियाओं का पुंज है। उन क्रियाओं को हम समझ सकते हैं, अपने में पहचान सकते हैं। अभी हमने उधर ध्यान ही नहीं दिया है, इसलिए हमको पहचान नहीं आया। जब ध्यान दिलाया जा रहा है तो मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा है। मैं बता रहा हूं चित्रण होता है, आप में तुलन होता है, विश्लेषण होता है। हम बोल रहे हैं जी भूत होता है। तो चित्रण, तो हम क्या है, जीवन क्रिया पे हमारा ध्यान जाए, मेरे में होता है, मैं उसको पहचानूंगा। तो आज आप थोड़ा सा आस्वादन चयन को ध्यान दीजिए कि आप में होता है कि नहीं होता है, तुलन होता है कि नहीं होता है, विश्लेषण होता है कि नहीं होता है। मेरे में कोई चित्रण बना हुआ है, वो मेरी मान्यताओं से आया हुआ है। जो कुछ भी हमने अब आप तक मान के रखा है, मेरा ही विश्वास उस पर नहीं है, फिर भी मैं मान के रखा हूं। ये चित्रण कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, कैसे सही होगा। सही चित्रण से सही इच्छा होती है, और प्रकृति का नियम है हर सही इच्छा पूरी होती है।
प्रकृति का नियम है, हर से इच्छा पूरी होती है। तो ये कैसे होगा, इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहा, कुछ बोलेंगे? बहुत बढ़िया सहयोग रहा, दिन भर सभा को बढ़िया बना के रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।